کہ لاہور بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ صدر کی نشست پر منیر حسین بھٹی، ادیب اسلم بھنڈر اور خرم رفیق شاد آمنے سامنے ہیں۔ مجموعی طور پر 14,228 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ سربراہ آسما جہانگیر گروپ ایس این بھون کا کہنا ہے کہ لاہور بار کے الیکشن میں تاریخی فتح حاصل ہوگی۔ محمد اشفاق سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ اشفاق جی بالکل، لاہور بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ پرامن طریقے سے پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ 14,228 ووٹرز آج اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے اور آج یہاں پر خاصی گہما گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس حوالے سے وکلاء کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ آسما جہانگیر گروپ کے سربراہ اور روح رواں احسن بھون صاحب موجود ہیں۔ ہم احسن بھون صاحب سے بات کریں گے۔ سر، کیسا دیکھ رہے ہیں آج کا الیکشن؟ آپ دیکھ رہے ہیں وکلاء میں جوش و خروش ہے، اپنے اپنے امیدواروں کے لیے کھڑے ہیں اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انڈیپینڈنٹ گروپ کے منیر حسین بھٹی اور ان کے جو حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ ہیں وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور سر، ہم نے دیکھا ہے کہ آسما جہانگیر گروپ کے جو بھی کینڈیڈیٹ جب کامیاب ہوتے ہیں تو وہ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں جو وکلا سے کیے گئے ہوتے ہیں۔ ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا، اس الیکشن کی کیا صورتحال ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں بھی ہم لاہور بار کے لیے، لاہور بار کی ویلفیئر کے لیے، وکلاء کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں گے۔ ہماری سب سے جو بڑی پریارٹی ہوتی ہے وہ لاہور بار وکلاء کی ویلفیئر کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہم نے پیچھے یہ ساری باتیں جو کام کیا، ابھی کل ہم نے پنجاب بار کونسل کی جو بلڈنگ ہے ان کا نئی بلڈنگ کا سنگ بنیاد رکھا ہے، اس کے لیے 5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ مختص کیا ہے اور جناب چیف منسٹر پنجاب نے جو آ کے دے گئے ہیں۔ اس ایشو پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ سر، آخری بات یہ بتائیے گا، آج کے الیکشن کی فضا کس طرف آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت لمبی لیڈ سے منیر حسین بھٹی اور اس کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ جیتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ آسما جہانگیر گروپ کے سربراہ احسن بھون صاحب موجود تھے اور اس وقت طاہر نصر اللہ وڑائے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طاہر صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں آج کا الیکشن؟ آج کا الیکشن انشاءاللہ جیسے بھون صاحب نے کہا ہے، انڈیپینڈنٹ گروپ کا ہمارا جو حمایت یافتہ پورا پینل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیاب ہوگا۔ ہمارا دیکھیں بیسک ہمیشہ ہمارا موٹو یہی ہے، ویلفیئر آف کمیونٹی، ویلفیئر آف بار۔ آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں اس بار کی ہسٹری دیکھیں کہ اس بار میں جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے، کوئی کمیونٹی کا کام کیا، وہ انڈیپینڈنٹ گروپ نے کیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی روایات کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو آج پینل کام جو آپ ہوگا، انڈیپینڈنٹ گروپ کی جو روایات ہے اس کو لے کے آگے چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی بالکل، آسما جہانگیر گروپ کے جو ممبران ہیں یہ بالکل اس حوالے سے پر امید ہیں کہ ان کا گروپ آج بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگا۔ تو ابھی پولنگ کا عمل جاری ہے اور شام 5 بجے تک پولنگ کا عمل اسی طرح سے جاری رہے گا۔ جی شکریہ اشفاق۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا میدان سج گیا۔ پولنگ کا عمل جاری ہے۔ مرد وکلاء کے ساتھ ساتھ خواتین وکلاء بھی پرجوش ہیں۔ خواتین وکلاء کی نعرے بازی اور سیلفیاں بھی لی۔ نما نور خواتین وکلاء کے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی نما نور، کیا کہتی ہیں خواتین وکلاء؟ جی، لاہور بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں پولنگ کا عمل جاری ہے اور مرد وکلاء کے ساتھ ساتھ خواتین وکلاء بھی یہاں پر آج کے اس الیکشن کے جو فنکشن ہے اس کو انجوائے کر رہی ہیں۔ سج سنور کے یہاں پر آئی ہیں اور سیلفیاں بنا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس فنکشن کو خوب انجوائے کیا جا رہا ہے۔ کچھ خواتین وکلاء موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم، لاہور بار کا الیکشن ہے، کیا کہیں گے؟ یہ جی ہمارے لیے بہت بڑا دن ہوتا ہے، الیکشن کا دن جو ہوتا ہے اس میں ہم بہت زیادہ تیاریاں کرتے ہیں، اپنے کینڈیڈیٹ کو جتوانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ جیت جائے۔ میڈم، آپ کیا کہیں گی؟ لاہور بار کا الیکشن ہو رہا ہے، لاہور بار کے الیکشن میں بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم، ہمارا کینڈیڈیٹ خودم ہے، بٹ خودم بیسٹ آف لک۔ جی، اور خواتین وکلاء بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم بتائیے گا، لاہور بار کا الیکشن چل رہا ہے، کیا کہتی ہیں؟ جی بڑی گہما گہمی ہے، ماشاءاللہ بڑی رونق لگی ہوئی ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ اتنی سردی میں بھی سب لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ بڑا جوش ہے، بہت زبردست، ہر کینڈیڈیٹ کے لیے بڑا جوش ہے۔ اور خواتین وکلاء بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم بتائیے گا، لاہور بار کا الیکشن؟ جی، لاہور بار کا الیکشن آج پورے جوش و خروش کے ساتھ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ میں راؤ تحسین صاحب کی
वाटर स्पोर्टर हूँ और हम जो टीम यहाँ पे मौजूद है हम सारी, और मेरी रिक्वेस्ट है तमाम देखने वालों से भी कि वो भी राव तहसीन साहब को वोट डाले और जनरल सेक्रेटरी बनाए लाहौर बार। मैडम आप बताइएगा। हम जी मुनीर हुसैन भट्टी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह विनिंग कैंडिडेट है वो। मैडम आप बताइएगा। राव तहसीन शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं, सेक्रेटरी के कैंडिडेट है लाहौर बार एसोसिएशन के लिए, काइंडली वोट एंड सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। मैडम आप बताइएगा किसको सपोर्ट कर रही हैं? वसीम मलिक कैंडिडेट फॉर जॉइंट सेक्रेटरी। 100% और इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे इस दफा। मैडम आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, हम मियां शर्जील को वोट कर रहे हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि जो बार और बेंच के लिए बेहतर हो, जो बार और बेंच के लिए बेहतर हो वही नुमाइंदगान आने चाहिए, जो वुकला और हमारी साख है उसको बरकरार रख सके। जी आपने देखा खवातीन वुकला का कहना है कि हम यहाँ पर आज की इस इलेक्शन को खूब इंजॉय कर रही हैं और ये हमारा त्यौहार है। जी शुक्रिया अनुमान। परवेज़ इलाही समेत दीगर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अली पाकी नशवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया। परवेज़ इलाही के 4 सूबाई और 2 कौमी असम्बली के हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। परवेज़ इलाही समेत दीगर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अली पाकी नशवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया। परवेज़ इलाही के 4 सूबाई और 2 कौमी असम्बली के हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा का इलेक्शन ड्यूटी से इनकार। रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया। कहा कि असातिज़ा क्लासेस और रिसर्च वर्क में मसरूफ़ हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ ड्यूटीज़ देगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब यूनिवर्सिटी के 500 असातिज़ा की ड्यूटीज़ लगाई थीं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा का इलेक्शन ड्यूटी से इनकार किया गया है। रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है। कहा कि असातिज़ा क्लासेस और रिसर्च वर्क में मसरूफ़ हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ ड्यूटीज़ देगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब यूनिवर्सिटी के 500 असातिज़ा की ड्यूटीज़ लगाई थी। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा का इलेक्शन ड्यूटी से इनकार किया गया है। रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी ने इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिख दिया है। मुस्लिम लीग नून की लाहौर में टिकटों की तकसीम का अमल मुकम्मल। लाहौर के तमाम सूबाई उम्मीदवारों को टिकटें जारी कर दी। कौमी असम्बली के हल्का NA 119 से मरियम नवाज़, NA 118 से हमजा शहबाज को टिकट मिल गया। शेख रुहेल असगर NA 121, सरदार अयाज सादिक को NA 120 से टिकट जारी। IPP और मुस्लिम लीग नून में 3 हल्कों में सीट एडजस्टमेंट तय पा गई। मुस्लिम लीग नून ने डिस्ट्रिक्ट लाहौर की टिकटों की तकसीम का मामला हल कर लिया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कौमी असम्बली के हल्का NA 130 से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। NA 132 और NA 123 से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। NA 118 से हमजा शहबाज और NA 119 से मरियम नवाज इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। NA 129 से हाफिज नौमान इंतखाबी मैदान में हैं। सरदार अयाज सादिक NA 120 और शेख रुहेल असगर NA 121 से इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के सुहेल शौकत भट्ट का NA 120 से कागजात नामजदगी वापस लेने का फैसला। सुहेल शौकत भट्ट अब सूबाई असम्बली के हल्का PP 151 से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 122 से ख्वाजा साद रफीक, NA 124 में राना मुबशर इकबाल मैदान में उतरेंगे। NA 125 मोहम्मद अफजल, NA 126 से मलिक सैफुल मुलूक होकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। NA 127 से अताउल्लाह तारड़ को पार्टी टिकट जारी कर दिया गया। इसी तरह सूबाई असम्बली के हल्कों के उम्मीदवार भी फाइनल कर लिए गए। PP 145 समीउल्लाह, PP 146 गजाली सलीम भट्ट, PP 147 हमजा शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। PP 148 से मियां मुजतबा शुजाउर रहमान, PP 150 से ख्वाजा इमरान नजीर को टिकट जारी। PP 152 से मलिक मोहम्मद वहीद, PP 153 से ख्वाजा सलमान रफीक, PP 154 से मलिक गुलाम हबीब आवान टिकट के हकदार करार पाए। PP 155 से नईम शहजाद, PP 156 से मोहम्मद यासीन आमिर, PP 157 से नसीर अहमद इंतखाबी उम्मीदवार फाइनल। PP 158 से शहबाज शरीफ, PP 159 से मरियम नवाज को टिकट जारी। PP 160 से मलिक असद अली, PP 161 से उमर सुहेल ज़िया भट्ट, PP 162 से शहबाज अली खोकर इलेक्शन लड़ेंगे। PP 163 से इमरान जावेद, PP 164 से शहबाज शरीफ को टिकट जारी। PP 165 से शहजाद नजीर, PP 166 से मोहम्मद अनस महमूद, PP 167 से इरफान शफीक होकर टिकट हासिल करने में कामयाब।
PP 168 से फैसल अय्यूब, PP 169 से मलिक खालिद परवेज खोकर को टिकट जारी किया गया। PP 170 से राना आहसन शराफत, PP 171 से महर इश्तियाक अहमद इंतखाबी उम्मीदवार हैं। PP 172 से राना मशहूद अहमद खान, PP 173 से मियां मरगूब को टिकट मिल गया। PP 174 से बिलाल यासीन इलेक्शन की दौड़ में शामिल हो गए। IPP और मुस्लिम लीग नून में सीट एडजस्टमेंट तय पा गई। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में IPP के साथ 3 हलकों में सीट एडजस्टमेंट कर ली। मुस्लिम लीग नून ने NA 117 अब्दुल अलीम खान के लिए खाली छोड़ दिया। मुस्लिम लीग नून ने NA 128 ओन चौधरी के लिए खाली छोड़ दिया। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर का 122 हलका PP 149 भी अलीम खान के लिए खाली छोड़ा है। मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन सेल के चेयरमैन सेनेटर इसाक डार ने टिकट हासिल न कर पाने वालों को पार्टी के नामजद करदा उम्मीदवारों की भरपूर हिमायत की हिदायत की है। इंतखाबी मैदान सजने की तैयारियां तहरीक इंसाफ ने लाहौर के लिए कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के पार्टी उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। मुतअद्दिद हल्के ज़ेरे इल्तिवा रखे गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात 2024 के लिए इंतखाबी खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। लाहौर में हल्का NA 118 से आलिया हमजा, NA 121 से वसीम कादर को टिकट जारी, NA 122 से सरदार लतीफ खोसा, NA 123 से अफजल अजीम को टिकट दिया गया। NA 124 से जमीर जेडू, NA 126 से मलक करामत खोखर इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। NA 127 से जहीर अब्बास खोखर, NA 128 से सलमान अकरम राजा को टिकट दिया गया। NA 129 से मियां अजहर, जबकि NA 130 से यास्मी राशिद मैदान में है। NA 117, NA 119, NA 120 और NA 125 के टिकट ज़ेरे अल्तवा है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली के लिए भी लाहौर में पार्टी रहनुमाओं को टिकट दे दिए। लाहौर में PP 145 से यासिर गिलानी, PP 146 से जुनेद रज़ाक एडवोकेट को टिकट जारी, PP 147 से मोहम्मद खां मदनी, PP 148 से गुलाम मुहीउद्दीन दीवान को टिकट मिला। PP 149 और PP 150 ज़ेरे अल्तवा हैं। PP 151 से कैसर सुहेल भट्ट और PP 152 से नुमान मजीद को टिकट जारी। लाहौर के सूबाई हल्का PP 153 और PP 154 को भी ज़ेरे अल्तवा रखा गया है। PP 155 से बिलाल असलम भट्टी, PP 156 से अली इम्तियाज वड़ाइच को टिकट मिल गया। लाहौर के हल्का PP 157 से हाफिज फरत अब्बास को टिकट दिया गया है। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल पंजाब से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। NA 117 लाहौर से सैयद आसिफ हाशमी, NA 127 से बिलावल भुट्टो जरदारी, NA 65 गुजरात से कमर जमान कायरा, NA 82 सरगोदा से नदीम अफजल चंद समेत दीगर अहम उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल पंजाब से कौमी व सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। बहुत से हलकों से खवातीन और अक़लियती उम्मीदवारों को भी टिकट्स जारी किए गए हैं। लाहौर अर्बन डिवीजन से NA 117 से सैयद आसिफ हाशमी, NA 125 से चौधरी अब्दुल गफूर मेयो, NA 127 से बिलावल भुट्टो जरदारी, NA 128 से अदील गुलाम मुहीउद्दीन, NA 129 से औरंगजेब बरकी, PP 145 से राना फ़कीर हुसैन, PP 154 से सुफियान खालिद घुरकी, PP 160 से मियां मिसबाह रहमान और PP 161 से फैसल मीर समेत दीगर इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। लाहौर रूरल डिवीजन से NA 111 ननकाना साहब से मोहम्मद वक्कास, NA 112 से शाहजहां भट्टी, NA 131 कसूर से चौधरी मंजूर अहमद, NA 134 से सैयद रजा अब्बास, PP 182 अमजद अली म्यो समेत दीगर उम्मीदवार पंजा आजमाई करेंगे। रावलपिंडी डिवीजन में NA 46 से राजा इमरान अशरफ, NA 51 मरी से महरीन अनवर राजा, NA 56 से सुमेरा गुल, PP 25 से तस्नीम नासिर गुजर और दीगर मैदान में उतरेंगे। गुजरांवाला डिवीजन में NA 65 से कमर जमान कायरा, NA 73 से राना महमूद अशरफ, NA 76 से सखावत मसीह, NA 77 से इम्तियाज सफदर वड़ाइच, PP 59 से मियां सऊदुल हसन और दीगर को टिकट जारी। सरगोधा डिवीजन में NA 82 से नदीम अफजल चंद, NA 84 से तस्नीम अहमद कुरैशी, PP 88 से रुखसाना बुनियाद समेत दीगर उम्मीदवार टिकट हासिल करने में कामयाब हुए। फैसलाबाद डिवीजन से NA 106 टोबा से जुल्फकार अली, NA 95 झुमरा से उस्मान नवाज, NA 99 से नेहा जावेद, NA 100 से सिदरा सईद बंदिशा, PP 96 से सैयद हसन मुर्तजा, PP 113 से नूरुन्निसा मलिक, PP 127 से नासिर सयाल समेत दीगर कई उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। साहिवाल डिवीजन से NA 135 उकाड़ा से गुलाम मुजतबा, NA 138 राय अहमद हसन जंदीका, NA 139 पाकपतन से मियां हुमायूं सरवर बोदला, NA 142 से महर गुलाम फरीद काठिया, PP 197 से राव जमील हाशिम खान, PP 198 से पीर जफर शाह खग्गा, PP 199 चौधरी सरमद शफकात और दीगर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। आम इंतखाबात के लिए लाहौर की इब्तिदाई पोलिंग स्कीम तैयार कर ली गई। शहर की 44 कौमी और सूबाई सीटों के लिए
68,58,000 शहरी वोट डालेंगे, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में 4,354 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। मजीद तफसीलात मोहम्मद इशफाक की इस रिपोर्ट में। लाहौर न्यूज़ ने शहर लाहौर के लिए इब्तदाई पोलिंग स्कीम की दस्तावेजात हासिल कर ली। कौमी असम्बली की 14 और पंजाब असम्बली की 30 नशिस्तों के लिए 68,58,095 शहरी वोट डालेंगे। लाहौर में मर्द वोटर्स की तादाद 36,36,253 जबकि खातिन वोटर्स 32,21,842 हैं। वोटर्स के एतबार से लाहौर का सबसे बड़ा हल्का NA 118 होगा, जहां 7,35,251 अफराद हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। सबसे छोटे हल्के NA 124 में 3,10,116 वोटर्स हैं, जबकि सबसे बड़े सूबाई हल्के PP 147 में 3,68,998 शहरी वोट डालेंगे। शहर में 4,354 पोलिंग स्टेशन और 12,991 पोलिंग बूथ भी कायम किए जाएंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन लाहौर के लिए हतमी पोलिंग स्कीम बाद में जारी करेगा। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद